सीएसआर एवं सबर्बन डायग्नोस्टिक और मंत्रा सोशल सर्विस के सहयोग से मुंबई महानगर पालिका के सायन स्थित लोकमान्य तिलक अस्पताल को लगभग 8 लाख रुपए कीमत के मेडिकल उपकरण एवं दवाइयां मुफ्त में आम जनता के सेवा हेतु मुफ्त में प्रदान की गई, ताकि गरीब मरीजों का अच्छा इलाज हो सके। इस अवसर पर सबर्बन डायग्नोस्टिक के अरुण बनर्जी, संख्या बनर्जी, सीईओ सुशांत किनरा ने अपने हाथों से मेडिकल उपकरण मनपा संचालित लोकमान्य तिलक अस्पताल के डीन डॉक्टर मोहन जोशी, डिप्टी डीन डॉक्टर घनश्याम आहूजा, एमएसडब्ल्यू डॉक्टर प्रकाश गायकवाड़ को प्रदान किया। इस मौके पर मंत्रा संस्था के पुनीत, सरवना, सिम्बा, नागराज, सिंघम, मयूर सहित भारी संख्या में हॉस्पिटल के स्टाफ उपस्थित थे। Sion Hospital, thank you very much for donating these equipments for the Sion Hospital. Sion Hospital or Lokmanya Tilak Municipal Medical College and General Hospital is catering to large number of patients. You will not believe that in the OPD we have got attendance of about 6,500 patients. We run about 43 operation theatres every day. Some of them work 24/7, some of them work from about up to 6 o'clock. And we perform minor and major surgeries roughly to the tune of 400 per day. This is very high number, far ahead of any other corporate hospital. And all poor patients are taken care of. We have got, statistically if you look at, we have got 3,000 critically ill patients who get admitted with accident. And a person who is found on road in a road traffic accident, whose relative doesn't know, who's nearby or any other person doesn't know anything, we take care of such person at par with anybody else in the corporate hospital. This is very important. We take care of about 35 complicated deliveries, because 35 to 55 is our range, and in a week on 2 to 3 days we have got 55 deliveries per day. So this number is because these deliveries are complicated, that either the child is going to need something immediately after birth, so called as NICU, or something like that. So we have got phenomenal good work which is going on here, and we appreciate, because the purchase procurement in a public sector is little a tricky task. What we want we may not get because it is expensive. We are supposed to go by the public sector purchase norms, and therefore sometimes there is a delay in purchases. Sometimes there is a problem that X we want, which is best according to us, we may not be able to buy because that is L2 or L3 in cost. Right. So therefore we take help of people like you, and you are also a healthcare company. So the profit which you have earned from patients, from I would say rich patients, because they come to you, rich patients, affordable patients, I am not saying that filthy rich all the time, a small amount you spend for the patients themselves. So that is the beauty of your donation over here, and I really thank you for that.
and we will go, our relations will go in a long way, and whatever you donate will be fully utilized for the hospital patients, because the volume is enormous. And since this is a medical college which has got 250 medical students, we have got a nursing college, we have got students who are trained from paramedics. That means somebody who is trained to tackle the heart-lung machine, and he gets a BSc degree which is recognized by University of Maharashtra University of Health Science. There is somebody who is doing work in the operation theatre, he becomes an operation theatre technician. So we have got that school too. We have got physiotherapy, we have got occupational therapy, we have got everything. A comprehensive care is given to the patient. We have got radio diagnosis technicians, we have got so many paramedical courses which are simultaneously going on with the medical teachers. And we have got almost all super specialities. So this takes care of everything under one roof. So your donation will go in a long way for the use of the patients. And thank you so much, and keep in touch. Thank you. मैंने तो मेरे स्पीच में बता दिया कि सबर्बन डायग्नोस्टिक सेंटर ने जो अपना हॉस्पिटल के लिए डोनेशन दिया है वो काफ़ी उपयुक्त होगा, क्योंकि हमारे इधर जो पेशेंट्स आते हैं वो नंबर्स में भी ज़्यादा है और कॉम्प्लिकेशंस में भी ज़्यादा है। जब हमें कहीं अस्पताल से एक आध चीज़ मिलने की देरी होती तो हम CSR को अप्रोच करते, और उसी तरह उन्होंने ये भी एक हेल्थ केयर कंपनी है, डायग्नोस्टिक कंपनी है, उनका जो अर्निंग है, प्रॉफिट है, वो भी पेशेंट के पास से है, और वो प्रॉफिट में से जो स्मॉल अमाउंट है वो गरीब पेशेंट के लिए यहाँ यूटिलाइज हो रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आप कंपनी की तरफ से डोनेट कर रहे हैं कुछ इक्विपमेंट वगैरह हॉस्पिटल? सबर्बन डायग्नोस्टिक सेंटर में जो साइन हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स और एक वैन एम्बुलेंस डोनेट किया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सबसे पहले तो अब ये कहना चाहेंगे कि ये हमारी सौभाग्यता है, इट्स अ ऑनर कि हम साइन हॉस्पिटल के साथ हम एसोसिएट हो सके। एज अ डायग्नोस्टिक कंपनी हमारा मोटो है जिसको हम बोलते हैं अनबर्डन हेल्थ केयर, कि जो पेशेंट है उसका जो हेल्थ केयर का उसको अगर लगता है कि बोझ है उसको कैसे कम किया जाए। और उसी सिलसिले में साइन हॉस्पिटल जो कि बॉम्बे का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, पब्लिक हॉस्पिटल है, और सबर्बन कंपनी जो कि बॉम्बे से ही स्टार्ट हुई है पिछले 30 साल से, जो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट 30 ईयर से जो हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो हम आप आए इनके साथ और हेल्प कर सकते हैं पेशेंट्स के लिए, वही हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आगे भी आप क्या साइन हॉस्पिटल के साथ में ही रहना चाहोगे और भी किसी हॉस्पिटल को? हमारा एक CSR का जो फंड है, जैसे कि डीन सर ने भी बताया, हमारा CSR का फंड होता है हर साल, और जहाँ पे भी नीडी रिक्वायरमेंट आती है हम वहाँ पे हम कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे साइन हॉस्पिटल से भी अगर इस तरह की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आती है तो ज़रूर हमारे जो फंड में हमारे जो कमिटी है वो चेक डिसाइड करके करती है। जैसे रिक्वायरमेंट की बात की गई है तो यहाँ पे हॉस्पिटल में ये इस हॉस्पिटल में काफ़ी जरूरत पड़ती है, काफ़ी लोग और बहुत फेमस हॉस्पिटल मुंबई का साइन हॉस्पिटल। तो आप आगे और कुछ चाहेंगे कि भाई और इससे ज़्यादा हम कुछ और इसको डोनेट करें यहाँ पे? सो जैसे मैं कह रहा था और डीन साहब ने भी कहा कि जो हॉस्पिटल की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में कभी कहीं पे कुछ अगर आता है, रिक्वायरमेंट आती है या कुछ उनको स्पेशल चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो हमारे पास अगर जो हमारे पार्टनर हैं मंत्रा, उनके थ्रू NGO फर्म्स हैं, उनके थ्रू जब आती है तो हमारी एक कमेटी है, वो कमेटी डिसाइड करती है, क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत रिक्वेस्ट आते हैं अलग अलग जगहों से। पर हाँ, हम ज़रूर फोकस ये करेंगे कि बॉम्बे के जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी, क्योंकि हमारी जो कंपनी है ये बॉम्बे बेस्ड कंपनी है, तो हम तो हमेशा बॉम्बे हॉस्पिटल या यहाँ के जो रिक्वायरमेंट्स है उसी को हम प्रायोरिटी देंगे आगे भी। सर, और आपकी जो संस्था है उसके माध्यम से और क्या प्रोजेक्ट, क्या कार्य सामाजिक चलते हैं? देखिए, सामाजिक कार्य में नॉर्मली एक, जैसे अभी इन्होंने बताया, एक हम BMC के साथ एक हमने न्यू नेटल एम्बुलेंस
जो है वो डोनेट किया है, एक स्पेशल रिक्वायरमेंट था। और हमारे कुछ जो कि पब्लिक सेक्टर के साथ नहीं जुड़ते हैं, बट हमारे एज अ प्राइवेट कंपनी हम काफ़ी हेल्थ चेकअप कैंप्स, हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप्स करते रहते हैं जनता के लिए, ताकि लोगों को ये पता लगे उनके हेल्थ के बारे में। और आज प्रिवेंटिव मेडिसिन बहुत लोग आगे जा रहे हैं कि भाई आप अपने को इलनेस से पहले ही आप बचा लें। तो उसमें भी हम काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं टाइम टू टाइम, और जब नेक्स्ट कभी कुछ ऐसी एक्टिविटी आएगी हम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। प्लस आई थिंक बॉम्बे के लिए जो हमने तो प्लस सबर्बन डायग्नोस्टिक्स ने पिछले 2 साल में बीएमसी के साथ मिलके डिफरेंट वार्ड्स में कोविड की जोर से टेस्टिंग की थी। आपको याद होगा शुरू में जब कोविड में मटेरियल नहीं था तो हमने बीएमसी के साथ में मिलके, बीएमसी कमिश्नर्स के साथ मिलके खूब सारे टेस्टिंग किए, चाहे वो धारावी था, चाहे वो अंधेरी ईस्ट वार्ड था या मलाड ईस्ट था। तो इस तरह के भी हमने बहुत सारे एक्टिविटीज़ कैंप्स किए हैं बीएमसी के साथ मिलके। कुछ एक एम्बुलेंस में हमने टेस्टिंग फैसिलिटी रखी थी, कुछ एक हमने ड्राइव इन, जैसे जहाँ पर लोग ड्राइव करके आ सकते हैं, पार्किंग में हमने कोविड के कैंप्स वगैरह किए थे। तो सरकार के साथ में, मुंबई कॉरपोरेशन के साथ में, बीएमसी के साथ में, इनफैक्ट साइन हॉस्पिटल के साथ में भी हमने बहुत सारे कैंप्स किए हैं फॉर कोविड टेस्टिंग। जो फ्री कोविड टेस्टिंग शुरू में लगते थे तो उसमें हमने काफ़ी पार्टिसिपेट किया। तो इस तरह से भी हमने काफ़ी सारे काम किए और आगे भी करते रहेंगे, एज शंकर सर ने बताया। सर आप जो सबर्बन डायग्नोस्टिक्स है उसके माध्यम से काफ़ी कुछ कार्य किए हैं, उसके बारे में जरा। हाँ, तो जैसे मैंने अभी पहले बताया कि जब शुरुआत हुई थी, लॉकडाउन हुआ था कम्प्लीटली, तब हमें वी वर दी फर्स्ट, सबर्बन डायग्नोस्टिक्स वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज हु गॉट दी अप्रूवल टू डू दी आरटीपीसीआर टेस्टिंग। उसको हमने बीएमसी के साथ, अब ये सारी प्रॉब्लम पब्लिक हेल्थ की है कि भाई कितने टेस्टिंग करने हैं, कैसे उसको आईसीएमआर में हमें डाउनलोड करना है डेटा, कौन कौन से वार्ड में टेस्टिंग करनी है, कहाँ कहाँ टेस्टिंग करनी है। ये हमने बीएमसी के साथ में मिलके एक स्ट्रैटेजी बनाई कि ऐसे ऐसे करके हम एम्बुलेंसेज के बीच में जाएंगे, या फिर हमने बीएमसी से मदद मांगी कि हमें आप ड्राइव थ्रू सेंटर कर दीजिए ताकि लोगों को सेंटर में जाना ना पड़े, कार में ही टेस्टिंग करने, कार के अंदर टेस्टिंग करनी शुरू की। इस तरह से हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की हैं पेंडेमिक के टाइम पे। और आज का दिन आप देख सकते हैं कि हम विदाउट मास्क बैठे, दैट मीन्स कि हमने पेंडेमिक को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया। मेरे ख्याल से अब आने वाला है भी नहीं, टच वुड, लेकिन हम सब ने बीएमसी के साथ मिलके बहुत अच्छा है। तो इस तरह से हमने खूब सारा काम किया पेंडेमिक के टाइम।